हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट नमान अशरफ और आज हम रिव्यू करेंगे लेक्सस ES। अगर आप जर्मन सेडान से हट के एक अच्छी जापानीज़ लग्जरियस सेडान चाहते हैं तो लेक्सस ES इज़ द वे टू गो। इट इज़ अ ब्यूटीफुल crafted car. It's Japanese reliability and Japanese design. You cannot mix it up. आप देख सकते हैं कि it's like a sword cut of a ninja everywhere on the lights, in front on the grille. So it's a beautiful, beautiful design. If you look at it, it got a very distinctive feel. It got this one big black grille. This is F Sport, so the grille is black. If you got the top of the range Takumi, it will have a little bit different grille from it. So it is a sportier design than the Takumi. The light over here, as you can see, इसमें एक सिंगल डियोड है, लेकिन अगर आप टॉप ऑफ द रेंज ताकुमी की लाइट में 3 डियोड्स होते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है इसका और क्रीजेज और लाइन सब अपनी जगह पे हैं, तो इट गिव्स यू अ वेरी स्पोर्टी लुक। सेम थिंग इफ़ वी गोइंग टू गो ऑन द साइड ऑफ द कार, as you can see over here, so it's a long limousine kind of a car, very sporty looking, very down. So अगर आप कहीं ऐसी जगह जाएं जहाँ खड्डे वगैरह हों तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। और जो ये बूट लिड है, ये जो आप बूट लिड देख रहे हैं, ये स्टैंडर्ड आती है हर गाड़ी के अंदर, और चाहे बेशक वो बेस मॉडल हो चाहे टॉप ऑफ द रेंज हो, ये बूट लिड मौजूद रहेगी। आपको जैसे देखें, ये खाली डिज़ाइनिंग है। एग्जॉस्ट के लिए यहाँ पे ओरिजिनल एग्जॉस्ट नहीं है। ओरिजिनल एग्जॉस्ट जो है वो इधर अंदर नीचे है, बॉटम की जाने फेस करता हुआ। इसकी बूट अगर हम ओपन करते हैं तो इट्स लाइक अ सेडान बूट। क्योंकि ये हैचबैक नहीं है तो इसकी ओपनिंग थोड़ी सी छोटी है, लेकिन फिर भी आप इसके अंदर बड़े बैग रख और निकाल सकते हैं। इट इज़ गुड फॉर 2 बिग बैग्स। देयर इज़ अ बिग lip over here, so it is going to be, you have to be little bit careful regarding putting the bags in and out of the car. Now we're gonna go and look at inside of the car, that how is the back seat के अंदर क्या स्पेस है, कैसी है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि इसका डोर जो है नाइसली एंड वाइडली ओपन होता है। इसमें आप आराम से बैठ जाते हैं इस तरीके से। तो वंस यू सिट इन द कार, तो ये very comfortable seat. Lexus, you know, they are famous for their luxury, so inside I can't doubt anything. Everything is leather, nicely put together. This is soft. ये normally soft है, और ये ड्यूल क्लाइमेट, इसके अंदर AC कंडीशन। ऑब्वियसली टाकुमी के अंदर यहाँ पे जो है वो 4-वे क्लाइमेट है, तो उसके अंदर यहाँ पे एक मशीन लगी होती है, लेकिन दिस इज़ गुड। इट गॉट 2.1A USB charging for your mobile, and you got a cigarette lighter charging port as well. उसके अलावा ये सीट जो है अगेन मेरी हाइट के मुताबिक सेट हुई हुई है, but I got a lot of space. There is some space to put your foot underneath the seats, and if you look at it, because of his reclining head space, I mean, there is enough space, but it's not the best to be honest. जो जर्मन सेडान है उनके अंदर थोड़ा सा गैप ज़्यादा होता है, तो अगर कोई 6 फीट से ऊपर का बंदा बैठे तो उसको मेरे ख्याल में थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी हो सकती है। इसके अंदर ये देख सकते हैं दोनों सीटों के अंदर ये चाइल्ड एंकर्स हैं, आइसोफिक्स जिसको कहते हैं, लेकिन ये इस तरीके से निकल आता है बाहर, तो ये गुम सकते हैं। जैसे BMW के अंदर वगैरह जो है वो ये बाहर नहीं आता, लेकिन it's a good thing you can put 2 child seats in there. लेकिन once you put the 2 child seat, you cannot put anybody third person in the middle. There is a big lip in the middle, so you have to have, when you sit in the middle seat, is a little bit higher. And again, look, now my head is actually touching the roof. My head almost is touching the roof. और well, 3 बड़े बंदे अगर आप पीछे बिठाएं तो कंफर्ट तो होगी, लेकिन लॉन्ग जर्नीज़ के अंदर थोड़ी मुश्किलात हो सकती हैं। Now let's go and sit in front and see how is the build quality in the front. So once you are inside the car, it's a really nice place to be. Lexus have done a fantastic job with this. It got soft touches, leather everywhere, wherever you touch. It got wonderful quality. It's solid. Everything, I can't, say any problem with it at the moment, but let's keep going on.
It got nice spaces. There is a cup holder over here. For shorter cups, they got something in the middle, and if you press the button, it comes up and you can become deeper. The on the side is little bit smaller. The places maybe 500 ml bottle पानी की आराम से आ जाएगी, और यहाँ पे भी एक कप रखने की जगह है. सबसे बेहतरीन चीज़ जो मुझे लगती है वो ये सेंटर के अंदर आप ये देखें, फॉर योर मोबाइल. तो आप यहाँ मोबाइल रख रहे हैं और साथ में इसके अंदर USB पोर्ट्स भी हैं, आप उसको चार्जिंग पे लगा सकते हैं. इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो है. जब आप इस गाड़ी का पावर बटन प्रेस करते हैं तो ये देखें स्टीयरिंग व्हील खुद ब खुद ऊपर हुआ और ये आपको वेलकम करती है. इसी तरीके से जब मैं बाहर जाऊंगा तो स्टीयरिंग व्हील वापस अंदर चला जाएगा, इसकी सीट भी पीछे मूव होगी. और उसके अलावा आप देखते हैं इसके अंदर जो स्क्रीन है, क्योंकि ये F स्पोर्ट है तो इसके अंदर जो स्क्रीन है वो छोटी है. सो ये टाकुमी के अंदर जो है वो फुल बिगर स्क्रीन है 12 इंचेस. इसके अंदर खाली 8 इंच की स्क्रीन है. इसकी जो ग्राफिक्स हैं वो इतनी अच्छी नहीं है. जर्मन सेडान कार की ग्राफिक्स आर अ लॉट बेटर. और इसके अंदर अब यहाँ आए तो सीट हीटिंग यहाँ पे मौजूद है. इधर नीचे इसके कंट्रोल्स हैं. इसको मैं साइड पर रखता हूँ. और ये देखें CD, it's really unique. You cannot find any more CD drives anywhere, but Lexus got one CD drives. Radio, you can track it over here and from here, whichever way you want. इसके अंदर यहाँ पे इसका क्लाइमेट कंट्रोल सारा इधर है. AC वेंट्स आर नाइसली डिज़ाइंड. और जब आप इसको ड्राइव करते हैं देन इसको मैंने ऑन कर दिया. सो बेसिकली नाउ इज टेलिंग मी इज़ रेडी. सो इफ़ आई पुट इट इन ड्राइव एंड गो, देयर इज़ नो साउंड, क्योंकि हाइब्रिड मोटर जो है वो इस वक्त काम कर रही है. ये इसका इंजन 2.4 हाइब्रिड पेट्रोल विद 218 ब्रेक हॉर्स पावर, विच इज़ वेरी नाइस एंड रिस्पॉन्सिव. उसके अलावा अगर आपने उसकी सेटिंग चेंज करनी है तो यहाँ पे इसकी सेटिंग है. सम कार्स की इधर होती है, लेकिन मेरे ख्याल में दिस इज़ नाइस एंड इजी टू चेंज. यू कैन पुट इट इनटू नॉर्मल और इको प्रो और स्पोर्ट्स एज यू वांट. इसके जो कॉल की सेटिंग वगैरह है वो यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील के ऊपर है. और इसकी जो क्रूज़ कंट्रोल है वो इसकी सेटिंग यहाँ पे है. लेन कंट्रोल इसके अंदर मौजूद है. फ्रंट रेडार है. टाकुमी का जो फ्रंट रेडार है वो डिस्टेंस कंट्रोल भी है. इसका डिस्टेंस कंट्रोल नहीं है, लेकिन अगर आप किसी गाड़ी को हिट करने लगेंगे तो इट विल अप्लाई द ब्रेक इटसेल्फ ऑटोमेटिकली. अदर देन दैट कपल ऑफ स्मॉल थिंग्स. अब मैं जो कहना चाहूँगा, इसका ये प्लास्टिक इधर है. जब हर चीज़ सॉफ्ट मटेरियल आपने बनाई हुई है, यहाँ देखें ये सॉफ्ट मटेरियल है, यहाँ सॉफ्ट मटेरियल है, ये सॉफ्ट मटेरियल है, तो इधर क्यों नहीं सॉफ्ट मटेरियल? यहाँ भी सॉफ्ट मटेरियल होना चाहिए था. उसके अलावा जो इसका ये डिज़ाइन है, ये लाइक अ जापानीज सोर्ड फॉर ओपनिंग द डोर्स एंड व्हाट नॉट. इस गाड़ी का जो ऑडियो सिस्टम है वो नॉर्मल ऑडियो सिस्टम है, बट टाकुमी के अंदर मार्क लेविंसन का ऑडियो सिस्टम आता है जो लॉट मोर पावरफुल है. एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी इसके अंदर ये है कि ये जो इसका मिडल कभी है, आप ये देखें, इसको मैं यहाँ से भी खोल सकता हूँ. अगर आपका पैसेंजर इसको खोलना चाहे तो उसको यहाँ से भी खोल सकता है. इसके अंदर भी एक चार्जिंग पोर्ट है. आप वो सिगरेट लाइटर की चार्जिंग पोर्ट लगा लें. अगर आप इस गाड़ी को खाली EV मोड में चलाना चाहते हैं तो यहाँ से प्रेस करें, EV मोड में चलेगी. उसके अलावा जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो इस माउस लुकिंग थिंग से भी कंट्रोल किया जा सकता है. एंड आई थिंक that's it for my conclusion inside. It's a nice place to be. I think let's go for a drive and have a look how it feels on the road. तो अब हम इसको जाएंगे ड्राइव के लिए. तो जब आप इसका अंदर बैठते हैं तो इट्स लाइक सेंस ऑफ ओकेजन. आप जब इसकी ये देखें, मैं सीट बेल्ट बंद करूँगा तो इस सीट ऑटोमेटिकली जो है मुझे मेरी पोजीशन पे ले जाएगी. स्टीयरिंग व्हील भी ऊपर आएगा. आप इसका पावर का बटन दबाएं तो ये जो है वो रेडी हो जाती है. एक यहाँ पे बनता है लाइक अ गैलेक्सी, ES लिखा आएगा एंड नाउ इट्स रेडी. तो नो साउंड बिकॉज इलेक्ट्रिक मोटर्स आर वर्किंग राइट नाउ. तो हम इसको चलाना शुरू करते हैं. इसके अंदर जो ES 300H है, इसका इंजन जो है वो 2.4 लीटर पेट्रोल विद हाइब्रिड मोटर्स. तो ये सीमलेसली ऑटोमेटिकली स्विच करता है. इंजन स्टार्ट हो जाएगा, जब इसके पास इनफ एनर्जी होगी तो ये खाली EV पे कन्वर्ट हो जाएगा. तो इट्स अ गुड ऑप्शन. सो इफ़ यू डोंट हैव योर EV चार्जर, यू नो, इफ़ यू हैव फुल इलेक्ट्रिक कार और आप अपने घर पे उसको चार्ज नहीं कर सकते, तो हाइब्रिड इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू. इसकी जो पेट्रोल कंजम्पशन है वो अमेजिंग है. मतलब सिटी के अंदर मैं चलता हूँ तो तकरीबन 44 माइल्स टू अ गैलन. अ गैलन इज़ 4.7 लीटर्स. सो 4.7 लीटर में तकरीबन 44 मील ये चली जाती है.
और हाईवे के ऊपर 4.7 लीटर में तकरीबन ये आपको 50 to 51 माइल दे जाती है। तो इसका मतलब है कि अराउंड 6 लीटर में 100 करेगी आराम से। 100 एक 98 100 तकरीबन 6.5 लीटर में ये कर जाएगी। तो मतलब अमेजिंग है। ड्राइविंग के लिहाज से इसके ये मुझे थोड़ा सा वो लगता है कि अगर मैं इसको स्पोर्ट्स में भी कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो जब मैं इसका स्टेप मतलब उसको एक्सीलेटर दूंगा ना, तो ये आपने आवाज़ सुनी ना, ही एक दफ़ा ये ज़ोर लगाती है, उसके बाद जाती है। तो ये थोड़ा सा है वो उसमें। लेकिन मेरे ख्याल में ये ट्रांजिशन है कि मोस्टली ये होता है कि ईवी पे होती है, खाली इलेक्ट्रिक के ऊपर चल रही होती है। जब आप उसको प्रेस करते हैं तो अचानक से जो है वो पेट्रोल इंजन को जगाता है कि देखो भाई ये तुम जाग गए हो और जो है वो अब तेज़ जाओ, क्योंकि जो है ड्राइवर चाह रहा है कि तुम थोड़ी सी स्पीड पकड़ो। तो उसमें फिर मतलब इतनी भी बुराई नहीं है, थोड़ी सी नॉइज़ आती है ही करके। तो इस ये कैमरी और इसका इंजन सेम है, तो उसका जो है वो सिमिलर ही आपको कैमरी में भी ऐसा इफेक्ट मिलता है, क्योंकि दोनों 2.4 लीटर पेट्रोल विद हाइब्रिड कैपेबिलिटीज़। तो तकरीबन 218 bhp या 160 किलोवाट जो है इसकी पावर है। अदर देन दैट सिटी के अंदर अक्सर व बेशतर बहुत क्वाइट रहती है। जैसे अभी कंटिन्यूसली जो है ये इलेक्ट्रिक पे चल रही है, तो जब सीमलेसली स्विच करेगी विद इलेक्ट्रिक टू मोटर टू पेट्रोल, फ्रॉम पेट्रोल टू इलेक्ट्रिक, तो बेस्ट जिस तरह कंजम्पशन उसकी वो आपको देगी, उस तरीके पे इसका ECU इसको कन्वर्ट कर लेगा। इसमें एक मुझे जो है वो थोड़ा सा मसला दिखाई दिया। जो जर्मन गाड़ियां हैं वैसे तो अगर उनकी भी अगर आप हाइब्रिड चलाएं तो सिमिलर सिचुएशन है, लेकिन चूंकि ये मिलती खाली हाइब्रिड में, इसमें आपको पेट्रोल या डीजल तो है ही नहीं। पेट्रोल मिल जाएगा लेकिन वो US में मिलता है, वो लेफ़्ट हैंड ड्राइव होगा ज़्यादातर। तो वो उसकी जो बैटरीज है ना वो सेंटर में वो हैवी हैं। तो जब आप इसको थोड़ी सी स्पीड के अंदर मोड़ते हैं ना, तो जो गाड़ी है वो वेट की वजह से एक तरफ को झुकती है, तो थोड़ी सी लाइक ए शिप, पानी में शिप की तरीके से ये बिहेव करेगी। लेकिन अदर देन दैट जो इसकी विंडोज़ क्लोज होने के बाद आइसोलेशन है, नॉइज़ आइसोलेशन, वो वंडरफुल, और आपको बिल्कुल बाहर से आवाज़ नहीं आती। सीट्स इसकी बहुत कंफर्टेबल हैं। स्टीयरिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन आप इसकी जिस तरीके से सेट करना चाहें अपनी पोजीशन पे सेट कर लें, तो जो उस वजह से जो है वो आप अपनी जो ट्रैवल है वो कंफर्ट में कर सकेंगे। सो वो कंफर्ट के अंदर आप लॉन्ग ट्रैवल करें तो भी ठीक है। सिटी के अंदर इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम एक ये है कि गाड़ी लंबी काफ़ी है, लेकिन कंसीडरिंग अगर आप 5 सीरीज़ या फिर Audi A6 किसी को भी ले लेंगे तो उसकी लेंथ के मुताबिक एक ही जितनी इसकी तकरीबन लेंथ है उसमें। बाकी ये कि मैं कहता हूँ कि दिस इज़ वेरी गुड इन जनरली स्पीकिंग। अगर आप थोड़ा डिफरेंट होना चाहते हैं क्राउड से, तो उसके अंदर अगर आप Lexus ES चलाएं तो बेहतरीन आप की एक अपनी आइडेंटिटी होगी। अदर देन दैट इट्स अ वंडरफुल कार जनरली स्पीकिंग। इसके फ्रंट के ऊपर जो है वो पार्किंग सेंसर है, बैक पे पार्किंग सेंसर है। इस गाड़ी के अंदर बैक कैमरा है, क्योंकि F स्पोर्ट है। जो टाकुमी है उसके अंदर जो है वो 360 कैमराज, 1 इन फ्रंट, 1 इन बैक, 2 ऑन द साइड मिरर्स, और पार्किंग सेंसर्स आर ऑलवेज वर्किंग, सो इट्स वेरी इजी टू मनूवर विद इन द सिटी। मतलब थोड़ा सा जनरली आप जब इसको ड्राइव करना शुरू करेंगे तो आप कॉन्शियस रहेंगे कि यार ये गाड़ी लंबी बहुत है, मोड़ते हुए कहीं कर्ब पे ना ये लग जाए या किसी और चीज़ से ना लग जाए, उसमें थोड़ा सा ध्यान रहता है। लेकिन एक दफ़ा जब आप इसकी आदत पड़ जाए तो इट वुड बी ग्रेट। कैमरी भी मैंने चला रखी है, लेकिन कैमरी की इंटीरियर क्वालिटी और कंफर्ट जो है वो चलने में ऐसी नहीं है। Lexus ने इसके अंदर जो सिस्टम लगाया है स्पोर्ट्स और इसके सस्पेंशन का, वो बहुत बेहतरीन है। मेरा जहाँ तक ये ख्याल है कि इसको बेशक आप हाईवे पे 70 के अंदर क्रूज़ कंट्रोल में रख दें और आराम से अपना बैठें, लाहौर टू इस्लामाबाद नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर, आपकी बिल्कुल भी थकान नहीं होगी और ये बिल्कुल आपको आराम से ले जाएगी। अब हम जो है वो इसको वापस लेके चलते हैं और वहाँ पे मैं जो हूँ आपको अपना फ़ाइनल कंक्लूजन दूंगा कि मेरा इस गाड़ी के बारे में क्या ख्याल है, कि इसको ख़रीदना चाहिए, नहीं ख़रीदना चाहिए, या फिर इसको खाली कंसिड्रेशन देनी चाहिए। क्योंकि मेरे इसको अगर आप
कीमत के लिहाज से देखेंगे तो 5 सीरीज़ या ई क्लास की जो कीमत है उसमें ही तकरीबन ये आएगी। ये वैसे ब्रांड न्यू थोड़ी सी सस्ती है उनसे, लेकिन कीमत का ब्रैकेट वही पड़ जाएगा। हो सकता है क्योंकि कैमरी जो है वो फुली लोडेड तकरीबन मिलती है 36,000 पाउंड्स की, और ये जो है फुली लोडेड तकरीबन 50,000 पाउंड है। तो क्या वो 14,000 पाउंड एक्स्ट्रा वर्थ करते हैं? आई थिंक हाँ, बिल्कुल वो एक्स्ट्रा वर्थ करते हैं। अब मैं इस गाड़ी को वापस लेके जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि इस गाड़ी को ख़रीदना चाहिए या इसको शॉर्ट लिस्ट करें। अगर आपने डिफरेंट देखना है, इसकी कंफर्ट वगैरह के लिहाज से इसकी कीमत क्या ये वर्थ करती है। वंस वी विल रीच बैक आई विल लेट यू नो अबाउट माई कंक्लूसिव डिसीजन। सो वी आर बैक नाउ। मैं अब आपको बताऊंगा कि मैं इस लेक्सस ES के बारे में क्या सोचता हूँ। मेरे ख्याल में इट इज़ अ वंडरफुल कार। अगर आप एक लग्जरी सेडान ख़रीदना चाहते हैं और जर्मन नहीं ख़रीदना चाहते तो आप इसको ज़रूर कंसीडर करें। लोग कहेंगे कि कैमरी भी ली जा सकती है, लेकिन कैमरी के अंदर ऐसी प्रेस्टीज, ऐसी क्वालिटी और ऐसी लग्जरीनेस नहीं है। सो आई विल डेफिनेटली से कि कंसीडर इट। आई नो इट इज़ लिटिल बिट एक्सपेंसिव बट यू पे फॉर व्हाट यू गेट। सो प्लीज़ इफ़ यू हैव लाइक आवर रिव्यू, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक कार का रिव्यू चाहिए, प्लीज़ लेट अस नो एंड वी विल ब्रिंग इट फॉर यू। For now, signing out, it's your host Noman Ashraf. Thank you and have a great day.